अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदरनवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 26 सूरतुल फतह की आयत नंबर 1 ता 10 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ील पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैक व यहदियक सिरातम मुस्तक़ीमा वयंसुरकल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा वयंसुरकल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा हुवल्लज़ी अंज़लस सकीनता फ़ी कुलूबिल मुमिनीना लियज़्दादू ईमानम मा ईमानिहिम वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द वकानल्लाहु अलीमन हकीमा लियुदखिलल मुमिनीना वल मुमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा व युकफ्फिर अन्हुम सय्यातिहिम व कान ज़ालिका इंदल्लाहि फ़ौज़न अज़ीमा व युअज़्ज़िबल मुनाफ़िकीन वल मुनाफ़िकाति वल मुशरिकीन वल मुशरिकाति ज़्वानीन बिल्लाह वल मुशरिकीन वल मुशरिकाति ज़्वानीन बिल्लाहि ज़न्नस्सौ अलैहिम दाइरतुस्सौइ व गज़िबल्लाहु अलैहिम व लअनहुम व अअद्द लहुम जहन्नम वसाअत मसीरा वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द वकानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु
وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ سورہ فتح مدنی ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے، اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے، اور اللہ تمہاری زبردست مدد فرمائے گا۔ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ انہیں یقین پر یقین بڑھے، اور اللہ ہی کی ملک ہیں تمام لشکر آسمانوں اور زمین کے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے تاکہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو باغوں میں لے جائے، جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں، اور ان کی برائیاں ان سے اتار دے، اور یہ اللہ کے یہاں بڑی کامیابی ہے۔ اور عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ پر گمان رکھتے ہیں، انہی پر ہے بری گردش، اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا اور انہیں لعنت کی، اور ان کے لیے جہنم تیار فرمایا، اور وہ کیا ہی برا انجام ہے۔ اور اللہ ہی کی ملک ہیں آسمانوں اور زمین کے سب لشکر، اور اللہ عزت و حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو، اور وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو جس نے عہد توڑا اس نے اپنے بڑے عہد کو توڑا، اور جس نے پورا کیا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا، تو بہت جلد اللہ اسے بڑا ثواب دے گا۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب سورہ فتح کی تفسیر جو ہے وہ اس کی شروع سے تفسیر۔ سورہ فتح مدنی ہے، اس میں 4 رکوع، 29 آیتیں، 568 کلمے، 2559 حرف ہیں۔ شان نزول انا فتحنا، حدیبیہ سے واپس ہوتے ہوئے حضور پر نازل ہوئی۔ حضور کو اس کے نازل ہونے سے بہت خوشی ہوئی، اور صحابہ نے حضور کو مبارکبادیں دی، یعنی کہ بخاری و مسلم و ترمذی میں اس کا ذکر ہے۔ حدیبیہ ایک کنواں ہے مکہ مکرمہ کے نزدیک۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ حضور اپنے اصحاب کے امن کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، کوئی حلق کیے ہوئے، کوئی کسر کیے ہوئے، اور کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے، کعبہ کی کنجی لی، طواف فرمایا، عمرہ کیا، اصحاب کو اس خواب کی خبر دی، سب خوش ہوئے۔ پھر حضور نے عمرے کا قصد فرمایا، اور 1400 اصحاب کے ساتھ یکم ذی القعدہ 6 ہجری کو روانہ ہو گئے۔ ذوالحلیفہ میں پہنچ کر وہاں مسجد میں 2 رکعتیں پڑھ کر عمرے کا احرام باندھا، اور حضور کے ساتھ اکثر اصحاب نے بھی، بعض اصحاب نے جعفہ سے احرام باندھا۔ راہ میں پانی ختم ہو گیا، اصحاب نے عرض کیا کہ پانی لشکر میں بالکل باقی نہیں ہے، سوائے حضور کے آفتابہ کے کہ اس میں تھوڑا سا ہے۔ حضور نے آفتابہ میں دست مبارک ڈالا تو انگشت ہائے مبارک سے چشمے جوش مارنے لگے،
लश्कर ने पिया, वजू किए। जब मकाम असवान में पहुंचे तो खबर आई कि कुफार कुरैश बड़े साजो सामान के साथ जंग के लिए तैयार हैं। जब हुदैबिया पर पहुंचे तो उसका पानी खत्म हो गया, एक कतरा न रहा। गर्मी बहुत शदीद थी। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं में कुल्ली फरमाई, उसकी बरकत से कुआं पानी से भर गया। सब ने पिया, ऊँटों को पिलाया। यहाँ कुफार कुरैश की तरफ से हाल मालूम करने के लिए कई शख्स भेजे गए। सब ने जाकर यही बयान किया कि हजूर उम्रा के लिए तशरीफ लाए हैं, जंग का इरादा नहीं है। लेकिन उन्हें यकीन ना आया। आखिरकार उन्होंने उर्वा बिन मसूद सकफी को, जो ताइफ के बड़े सरदार और अरब के नहायत मुतमव्विल शख्स थे, तहकीक के हाल के लिए भेजा। उन्होंने आकर देखा कि हजूर दस्ते मुबारक धोते हैं तो सहाबा तबर्रुक के लिए गुस्साला शरीफ हासिल करने के लिए टूटे पड़ते हैं। अगर कभी थूकते हैं तो लोग उसके हासिल करने की कोशिश करते हैं, और जिसको वो हासिल हो जाता है वो अपने चेहरा और बदन पर बरकत के लिए मलता है। कोई बाल जिस्म में अकदस का गिरने नहीं पाता। अगर एहजानन जुदा हुआ तो सहाबा उसको बहुत अदब के साथ लेते और जान से ज्यादा अजीज रखते हैं। जब हजूर कलाम फरमाते हैं तो सब साकित हो जाते हैं। हजूर के अदब व ताजीम से कोई शख्स नजर ऊपर को नहीं उठा सकता। उर्वा ने कुरैश से जाकर ये सब हाल बयान किया और कहा कि मैं बादशाहाने फारस व रूम व मिस्र के दरबारों में गया हूँ। मैंने किसी बादशाह की ये अजमत नहीं देखी जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके असहाब में है। मुझे अंदेशा है कि तुम उनके मुकाबिल कामयाब ना हो सकोगे। कुरैश ने कहा, ऐसी बात मत कहो, हम इस साल उन्हें वापस कर देंगे, वो अगले साल आए। उर्वा ने कहा कि मुझे अंदेशा है कि तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे। ये कहकर वो माँ अपने हमराइयों के ताइफ वापस चले गए। और इस वाक़े के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें मुशर्रफ बा इस्लाम किया। यहीं हजूर ने अपने असाब से बैत ली। इसको बैत रिजवान कहते हैं। बैत की खबर से कुफार खौफजदा हुए और उनके अहल और राय ने यही मुनासिब समझा कि सुलह कर लें। चुनाचे सुलहनामा लिखा गया और साल आइंदा हजूर का तशरीफ लाना करार पाया। और ये सुलह मुसलमानों के हक में बहुत नाफी हुई, बल्कि नताइज के एतबार से फतह साबित हुई। इसीलिए अक्सर मुफस्सिरीन फतह से सुलह हुदैबिया मुराद लेते हैं, और बाज़ तमाम फतूहात इस्लाम जो आइंदा होने वाली थीं और माजी के सीगा से ताबीर उनके यकीनी होने की वजह से है। और तुम्हारी बदौलत उम्मत की मगफरत फरमाए, दुनियावी भी और उखरवी भी। तबलीग रिसालत व अकामत मरासिम रियासत में दुश्मनों पर कामिल गलबा अता करे और बावजूद अकीदा रासखा के इत्मीनान नफ्स हासिल हो। वो कादिर है जिससे चाहे अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाए। आसमान और ज़मीन के लश्करों से या तो आसमान और ज़मीन के फरिश्ते मुराद हैं, या आसमानों के फरिश्ते और ज़मीन के हैवानात। इसने मोमिनीन के दिलों की तस्कीन और वादा फतह व नुसरत इसलिए फरमाया कि वो अपने रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन पर ईमान लाने वालों की मदद ना फरमाएगा अजाब व हलाक की अपनी उम्मत के अमाल व अहवाल का, ताकि रोज़े क़यामत उनकी गवाही दो, यानी मोमिनीन मुकर्रीन को जन्नत की खुशी और नाफरमानों को अजाब दोज़ख का डर सुनाता। सुबह की तस्बीह में नमाज फजर और शाम की तस्बीह में बाकी चारों नमाजें दाखिल हैं। मुराद इस बैत से बैत रिजवान है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया में ली थी, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करना अल्लाह ताला ही से बैत करना है, जैसे कि रसूल की इताअत अल्लाह ताला की इताअत है। जिनसे उन्होंने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत का शर्फ हासिल किया, इस अहद तोड़ने का वबाल उसी पर पड़ेगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला के फज़ल करम से आज तक की यहाँ तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और इसके शान नज़ूल इख्तिताम पज़ीर हुआ। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबाए किराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फरमाए, तमाम मरहूमीन को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला व बाला मकाम अता फरमाए। और आप तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये इस्तदा है कि आप ज़रूर इस यूट्यूब के चैनल को ज़रूर, जो खुद भी देखें इस चैनल को, अपने बच्चों को, अपने अजीज़ व अकारिब को और दोस्तों अजीज़ व अकारिब को ज़रूर इस प्रोग्राम को देखने की तलकीन करें, तबलीग करें। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला के दरबार के अंदर कि अल्लाह ताला
مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دن قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.